من هو
والكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء أخذني رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم عن لمن حاربهم وسلم لمن ظالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يسير ولا فلك يسير إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أتأذنون أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجير ولا فلك يسير إلا لأجلكم ومحبتكم وحدثنا أن جمعهم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستثناني بالرسالة نجيا ما تقربنا هذا في نهر من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال لي والله تبنا وبعض رب الكعبة وقال
النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا أيها الذي بعثني بالحق نبيا واستقام بالرسالة نجيا ما ذكر قدرنا ماضى في محفل من محافل أهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله عنه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجتي إلا وقضي الله حاجتي وقال أنجو من الله قلنا وسئلنا وكذلك شيئتنا فعلوا وسئل في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق نسبة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. Sayyid
टुकड़े जिगर हुआ
हज़रात से मर्ज़ा एक मरतबा सूरह हद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर काज़िम अली इब्न फ़ैरोज़ अली, कनीज़ सकीना बिन्त शाकिर अली, कनीज़ सुगरा बिन्त काज़िम अली, मज़हर अली इब्न काज़िम अली, इन तमाम की अरवाह के लिए ईसा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादाराम में मज़लूम करबला, एक इंसान की ज़िंदगी के लिए जो मुसीबतें वारिद होती हैं फितरी तौर पर, उन मुसीबतों में एक अजीम मुसीबत का नाम यतीमी है। बाप का साया सर से उठना इंसान के लिए बहुत अजीम मुसीबत का नाम है। जिनके सरों पर बाप का साया है, खुदा सलामत रखे और औलाद को उस बाप की खिदमत, उस बाप के एहतराम की तौफीक अता करे। इसीलिए कि ये साया बहुत अहम साया है। ये साया सर से उठ गया तो सारी दुनिया होते हुए भी तन्हाई का एहसास होता है। सब होते हुए भी इंसान अंदर से क़ल्बी तौर पर टूट जाता है। बाप का साया बहुत अहम साया है। इसीलिए तो इस्लाम में यतीम परवरी के उन्वान से पूरा एक बाप है कि जिसमें अहले बैत अतहार में यतीम परवरी का दर्स दिया है दुनिया को कि यतीमों के साथ कैसे सलूक किया जाए। फरमाया खबरदार, कभी किसी यतीम के माल को गस्ब न किया जाए, कभी किसी यतीम को डराया न जाए, उसे घुरका न जाए। इंतहा इस घराने से दर्ज मिला कि कोई यतीम सामने हो तो अपने बच्चों से मोहब्बत न किया करो। क्यों? उसे यतीमी का एहसास होगा। खुदा इन एहसासात को सलामत रखे। हमारे रोने को ये काफी है कि फातिमा यतीम हो रही है। जनाब सैयदा की यतीमी के लम्हात पर होने को आए हैं। आज की शब आने वाला भी जनाब फातिमा ज़हरा के सर से बाप का साया उठने का समय आपको मनाना है। और फिर सिर्फ बाप का साया नहीं, अरबाब अज़ा, अगर आप महसूस करें कितनी गुर्बतों पर आप अहले बैत की रो रहे हैं, मुसलसल मातम कर रहे हैं, मुसलसल मजलिसें कर रहे हैं। अज़ीज़ा ने गिरामी, अगर आप गौर करें तो अंदाजा हो कि रसूल अल्लाह का साया सर से उठना ही अहले बैत की मुसीबतों की शुरुआत हो रही है। आले रसूल के मसाइब का आगाज है रसूल अल्लाह का साया सर से उठना। जनाब सैयदा की गुर्बतों का आगाज है। हाय जनाब ज़हरा की यतीमी, अल्लाह इस घराने की ये पहली यतीमा है जिस घराने ने यतीम परवरी का इतना दर्द दिया। आइए उम्मत उसी यतीमा बीबी पर ऐसे जुल्म डाल रही है, खुद रसूल अपनी यतीमा पर गिरिया करके दुनिया से जा रहे हैं। दरवाजे की तरफ बता के, ऐ फातिमा ये वो दरवाजा है जहाँ मलाइका भी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आंखों में आंसू आ गए। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं कुछ और मंजर देख के रो रहा हूँ। हाय रसूल को मालूम है कि अभी कुछ दिन नहीं गुजरेंगे, इसी दरवाजे पर आग लगा दी जाए। हाय
पुरसा है। बाप का साया सर से उठा, कैसे गए रसूल, कैसे कत्ल हुए रसूल, कैसे शहीद हुए रसूल। तो एक फिक्रे में इमाम ने मसाइल पढ़ दिए कि जैसे हसन को जहर दिया गया वैसे ही रसूल अल्लाह को जहर दिया गया। एक फिक्रे में वजाहत कर दी। अल अरबाबे अता रसूल अल्लाह का साया उठा, यही तो अजीम गम है ना। तो आप सोचें कि जब भी 28 सफर का दिन इस घराने में पलट के आता होगा, क्या कैफियत होगी कि हाय यही दिन था कि नाना का साया सर से उठा, यही दिन था कि मोहम्मद का साया सर से उठा, यही दिन था कि मुसीबतों का आगाज हुआ इस घर में। मगर हाँ, अरबाबे अज़ा 40 हिजरी 30 साल के बाद रसूल के इसी घराने में इसी दिन एक और अज़ियत पहुंचा दी गई। कैसा गम दिया गया कि हाँ, फातिमा के बेटे को जहर दे दिया गया। जिस घराने में रसूल का मातम था, आप सोचे 1400 साल बाद आप जनाब ज़हरा की यतीमी पर हो रहे हैं। तो रसूल को गुजरे तो सिर्फ 30 साल हुए थे। क्या आलम होगा रसूल अल्लाह के घराने में, किस कदर बीबियां बेकरार होंगी इस दिन के लिए जनाब ज़हरा की गुर्बतों पर। मगर हाँ, जनाब ज़ैनब को इत्तला मिली कि फिर इमाम हसन को जहर दे दिया गया। मगर अब की बार ज्यादा बिन्ते अशअस मलूदा ने ऐसा जहर दिया कि अल्लाह अकबर, इमाम खै करने लगे। खै आने लगी इमाम हसन को। बहन ने देखा भाई खै कर रहा है, उठने की जहमत न दी, लगन ला के सामने रख दिया। ऐसी जगह अब जो है सिर्फ खै नहीं, जिगर के टुकड़े। आज जनाब फातिमा यतीम होगी, औलाद हसन भी यतीम हो गई। और बाबे अल्लाह औलाद हसन को पुरसा दे, उसी के साथ उस बीबी को, हाँ आपने जनाब फातिमा को पुरसा दिया, एक और फातिमा बीबी को पुरसा दे। फातिमा बिन्ते हसन है, हसन की बेटी फातिमा है, कासिम की बहन फातिमा, सैयदे सज्जाद की ज़ौजा, 5वें इमाम की वालिदा, ये बीबी भी जनाब फातिमा की तरह यतीम हुई है इसी दिन। मगर अरबाबे अल्लाह इस बीबी को भी यतीमी का पुरसा बड़ा अजीब अंदाज में मिला। बाप का जनाजा अभी घर से गया ही था कि कुछ देर में जनाजा लौट के भी घर आया। क्या देखा, जनाजे पर तीर लगे हुए हैं। अरे कम से कम साथी हसन के जनाजे शहजादी किसी घर में न रुला। मर्जियों की तरतीब आपने सुनी, बस उस मर्जियों की तरतीब जहन में रखे और पुरसा और जहमत करना। अल्लाह क्या मंजर देखा इस बीबी ने, यतीमी के पुरसे की बजाय उम्मत ने बाप के जनाजे पर तीर भेजे हैं। ये यतीमी इस बीबी की है। अल्लाह क्या गुर्बत है इस घराने के यतीमों की। मगर अरबाबे अज़ा आइए, एक और फातिमा बीबी है जो अपने बाप के जनाजे का नहीं, अपने बाप का इंतजार कर रही थी। मदीने में कभी कब्र हसन पे, कभी कब्र रसूल, मगर कब्र मिली बाप नहीं, यतीमी एक नहीं, पूरा घर उजड़ेगा जिसका इंतजार कोई ना इंतजार। एक भाई दुनिया से उठे दुनिया से उठे रसूल अकरम।
हाय हसन 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 हाय हसन
शब्बे कजनाजा जाता है और तीर ही बरसाते हैं शब्बे कजनाजा जाता है और तीर ही बरसाते हैं भाई की वसीयत पे हमको भाई की वसीयत पे हमको करना है अमल मेरे जरी करना है अमल मेरे जरी जो सफरदा की मंजिल पे के रोज़े पे बरमाते और तीर ही बरसाते हैं जब गरमाता जाता है और तीर ही बरसाते हैं 18 बनी हाशिम के जिक्र 18 बनी हाशिम के जिक्र इस गम से हुए टुकड़े मज़े में इस गम से हुए टुकड़े मज़े में मैयत को किसी की सोच जरा कोई नहलाते हैं और तीर लगी बरसाते हैं शब्बर कदनादा और तीर लगी बरसाते हैं शब्बर है शब्बर है शब्बर है शब्बर है शब्बर है शब्बर ऐसे गए फला लिया मार सलाम ऐसे गए फला लिया मार सलाम फातिमा के दरबार लिया मार सलाम लगन हो गया हसन मुस्तफा लिया मार सलाम सैयदा की दुआ सैयदा की दुआ
खुदा के दी को हश्रता हमेशा जिंदा कर दिया। खुदा के दी को हश्रता हमेशा जिंदा कर दिया। जो वादा कर चुके थे वो रसूल से निभा दिया। इसलिए नाम हुसैन दिल से कभी मिट न सकेगा। हुसैन नाम तेरा जिंदा रहेगा। 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 हुसैन नाम तेरा रहेगा। अज़ीम ताज़ीम है बुलंद तेरा नाम है। लबों पे ज़िक्र हो तेरा यही हमारा काम है। हर एक सलाम हो तुम्हें हुसैन तुम्हारे साथ पर हुसैन। हजार लाख का किसी झुकाना तेरा सर हुसैन। तेरा न मर्तबा हुसैन का समझ सका कभी कोई। हुसैन वो है जो हमें सिखा गया है बंदगी। जब खुदा की राह में जो तू लुटा दिया है अपना घर किया लहू से खुशबू जमीन के बला को करे आज ये मजलिसे ये मातमी ये अफ्तरी की नौकरी विदा करेंगे हम सभी तेरे लिए ये जिंदगी ये देते थे सदा रोकर सरवर ऐ भाई हसन ऐ भाई हसन।
क्या करे भाई, टुकड़े टुकड़े हैं जी से जिगरे, टुकड़े टुकड़े हैं जी से जिगरे, टुकड़े ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, तेरे सतारों पे सरवर, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, तेरे सतारों पे सरवर, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, कैसे मैं जनाजा ले जाऊं और फिर वापस बतलाऊं, ऐ पीर तुम्हारे लाशे पे, ऐ पीर तुम्हारे लाशे पे, पीर तुम्हारे लाशे पे, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, तेरे सतारों पे सरवर, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, तेरे सतारों पे सरवर, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, कैसी क़यामत आई, क़ासिम पे यतीमी छाई, रोती है खड़ी उसकी माते, रोती है खड़ी उसकी माते, रोती है खड़ी उसकी माते, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, ये तेरे सतारों पे सरवर, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, ये तेरे सतारों पे सरवर, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, तुमसे रब भी तलब होंगे, चमके वो बना के मैदान में, लाशा मेरा होगा तीरों पे, लाशा मेरा होगा तीरों पे, लाशा मेरा होगा तीरों पे, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, तेरे सतारों पे सरवर, ऐ भाई हसन, ऐ भाई हसन, बतूल पाक ज़ैनब के सुपन दश्ते बला में लुट गया, अम्मा तेरा चमन करबो बला में मिट गई, तस्वीर बन तन, अम्मा मैं बेरिदा हुई, भाई था बेकफन,
अंजुमन कारवान अज़ा तेरे आए फुर्सत में फातिमा नहीं गोद के पाले अम्मा की दौलत
अली और था अकबर का कलेजा कांधे पे ज़ईदी के जवान बेटे का लाशा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.